Dear students, let us study next property of alkyl halide, that is elimination reactions. Elimination reactions. In the previous video, we studied substitution reactions. Now let us have alkyl halide say ethyl bromide. How the elimination occurs? Elimination occurs in such a way that one halogen atom and one hydrogen atom get removed from the vicinal carbon atoms, adjacent carbon atoms. Hydrogen atom get removed from the carbon atom which is attached to the carbon atom to which halogen atom is attached. We also call it beta carbon atom. Bromine atom attached to this carbon, it is alpha, and next one is beta, common system of them. जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, we call that carbon as what? Alpha carbon, and the next one is called as. Dear students, जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि जिस कार्बन से हेलोजन निकलेगा उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा. This is how the elimination will occur and the product will be alkene. This is the elimination. Product क्या बनेगी? Alkene along with H positive and Br negative. अब question राइज होता है, how the Br negative will be removed, how the H positive will be removed, how their removal will occur. Now this is done by treating the given alkyl halide with alcoholic QH. The reaction alcoholic. So what is important? Important क्या है बच्चे यहाँ पे? Alcoholic QH contain alkoxide ion. Alcoholic QH contain alkoxide ions. अगर आपको याद है बच्चे, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी स्टडी किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन with OH negative. In that reaction, we treated alkyl halide with aqueous QH. Aqueous QH preferably undergo nucleophilic substitution like this. That is, OH negative ions act as nucleophile and we get alcohol. This is the reaction which we studied earlier. So here we are using alcoholic QH, aqueous and alcoholic. What is the difference? The difference is alcoholic QH contain alkoxide ions, RO negative. Understood? इसमें अल्कोहल है, alcoholic QH तो अल्कोहल है, इसमें क्या होते हैं? Alkoxide ions. Alkoxide ions are strong bases than nucleophile. Strong bases. बेस किसको प्रेफर करता है बच्चे? H पॉजिटिव. बेस प्रेफर H पॉजिटिव. ये जो आपका बच्चे कौन? ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे बिहेव करेगा, तो ये प्रेफर करेगा H पॉजिटिव को. H पॉजिटिव. अब ये हमारा अल्काइल हैलाइड है. दिस इज अल्काइल हैलाइड. Br का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव. ये माइनस आई करेगा इसके ऊपर. ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ये विथड्रॉ करेगा इससे और अल्टीमेटली ये करेगा H से. तो दिस H इज एसिडिक इन नेचर. आप कहेंगे ये वाला H भी तो एसिडिक है, लेकिन बच्चे यहां से अगर H निकले, RO नेगेटिव, ये वाला H निकाले, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनता. सिर्फ H पॉजिटिव की बात नहीं है. इट इज नॉट ओनली द केस ऑफ H पॉजिटिव, इट इज द केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आल्सो. प्रोडक्ट भी स्टेबल बननी चाहिए. RO negative will prefer to remove what? H positive from here. This bond becomes free. ये bond free हो जाएगा. इसने बेस का काम किया, यहां से H positive निकाला.
So this bond become free. ये बॉन्ड किधर को खींच रहा है? इसको अट्रैक्शन किस साइड से है? फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ व्हाट? ब्रोमाइड. As soon as this bond shift to this side, bromide ion will move out. क्योंकि इसके कितने बॉन्ड हो गए? 4. 3 पहले हैं, 1 2 3 और ये 4, सॉरी 5. एक्चुअली देखा जाए तो 5 बॉन्ड हो रहे हैं. 5 बॉन्ड, ये 5वां बॉन्ड है जो बनने जा रहा है. एक बॉन्ड को निकलना है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4. अल्टीमेटली क्या होगा बच्चे? वी गेट अल्कीन. यहाँ पे जो हमने रिएक्शन दिखाया, यहाँ पे हमने आरओ नेगेटिव दिखाया नहीं है, पर आपने याद रखना है कि अल्कोहलिक KOH, concentrated alcoholic KOH solution contain alkoxide ion which act as very strong base. जो किसका काम करते हैं बच्चे? स्ट्रॉन्ग बेस का. इसलिए बच्चे दिखाना हमने इसी से है, KOH से. OH नेगेटिव ने किसको निकाला? H को. दिखाएंगे हम इसी से, लेकिन एक्चुअल में काम इसी ने किया है. बाद में जब आपका बनेगा R, क्या बच्चे? OH, फिर से बेस से रेड करके क्या बना देगा? एल्कोक्साइड आयन ना. तो इसलिए अल्टीमेटली एल्कोक्साइड ने आयन ने एंड में बाहर निकल आना है. मतलब एक किस्म का कैटलिस्ट का काम कर रहा है. इसलिए हम इसको रिएक्शन में नहीं दिखाते, हम यहाँ पे रिएक्शन में किसको दिखा रहे हैं? वी आर शोइंग KOH, रिएक्शन विद KOH. लेकिन इस चीज को आपने समझना है. अदरवाइज देखें आप, जब आप एक्वस KOH का इस्तेमाल कर रहे हैं, then we are preferably getting what? Substitution. And when we are using alcoholic KOH, we are preferably getting what? Elimination. OH negative, alcoholic, strong base, यहां से H पॉजिटिव क्यों निकाला? मैंने आपको बताया कि Br का माइनस आई इफेक्ट ट्रेवल कर रहा है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और H पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज. निकलेगा बीटा कार्बन से बच्चे, अल्फा से नहीं निकालेगा. ये अल्फा से निकाल के प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बन रही, गामा से भी नहीं निकालेगा. कहां से निकलेगा? बीटा, बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्टेबल. OH नेगेटिव निकाला, H को बन गया वाटर. ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पे बच्चे सेंटर में. ठीक है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5. 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है. ब्रोमीन वैसे ही निकलना चाहता है, ब्रोमाइड आयन बन के, ये यहाँ से निकल जाएगा. Br नेगेटिव, K पॉजिटिव, वी गेट पोटेशियम ब्रोमाइड. ये बच्चे देखिए, एक और दिया है, बीटा कार्बन से निकलता बच्चे हाइड्रोजन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं. तो आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. अल्फा एलिमिनेशन भी होती है, लेकिन यहाँ हम स्टडी नहीं करेंगे. यहाँ से दोनों एटम एक ही कार्बन से निकल जाते हैं. एडजेसेंट से निकले तो बीटा एलिमिनेशन, सेम कार्बन से दोनों एटम एलिमिनेट हो, अल्फा एलिमिनेशन. वो हम बाद में देखेंगे, कभी टाइम लगा तो. ये एग्जांपल दी है बीटा से निकालना. बीटा क्या है? इस द कार्बन टू व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड, दैट इज अल्फा, एंड द नेक्स्ट वन इज बीटा. बीटा से H निकलेगा और यहाँ से Br, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, वी गेट प्रोपीन. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, सेट-ज़ेफ रूल इसी में आता है. सेट-ज़ेफ रूल, सेट-ज़ेफ भी कहते हैं इसको, सेट-ज़ेफ भी कहते हैं. सेट-ज़ेफ रूल, ये बच्चे, ये रूल क्या है? इफ वी हैव अल्कीन, अगर हमारे पास अल्कीन हो, जैसे मैं ड्रा करने जा रहा हूं, which can give more than one, अगर हमारे पास, मैंने अल्कीन बोल दिया शायद, अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो, if we have the alkyl property, हम अल्काइल हैलाइड की पढ़ रहे हैं. if we have alkyl halide of the type which can give more than one alkene, more than one alkene कब बनेंगे बच्चे? the alkyl halide possesses two different types of beta carbon. देखिए बच्चे, ये अल्फा है, ये बीटा इधर है, तो ये बीटा इधर भी है, इसको बीटा डैश कर लेते हैं. दोनों में देखिए फर्क है. this beta is a CH2 type, this beta is a CH3 type. now हमने क्या बोला? जिस कार्बन से हैलोजन निकलेगा, उसके पास वाले से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन. पास वाले जब दो हैं, वी हैव दिस साइड एज वेल एज दिस साइड. अगर इस साइड से हाइड्रोजन निकलता है, तब प्रोडक्ट विल बी दिस, ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चे. देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. यहां से देखिए ऐसे, बच्चे देखिए ऐसे, ये ब्रोमीन है. और अगर इस साइड से निकलता है H, मैं इसको दिखा देता हूं, H अलग से शो, इस साइड से निकलता है, तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा. तो टू अल्कीन्स आर पॉसिबल. अब यहां से नहीं निकाल रहे हैं हम, CH2 रख रहे हैं, फिर आगे CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड क्या बच्चे? CH. टू अल्कीन्स आर पॉसिबल. तो सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है कि दैट अल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड. जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कौन है वो? ये वाला अल्कीन.
इस अल्कीन के ऊपर बच्चे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 अल्काइल। इस अल्कीन के ऊपर बच्चे 1 सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए एक ही साइड है, 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो ये रूल कहता है सेट-ज़ैप रूल कि वो अल्कीन बनेगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि जे ज्यादा बनेगा। ब्यूट 2 इन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू बिट 1 इन। ये कम बनेगा, देखो लिखा माइनर, ये लिखा है मेजर। हाउ दिस हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ उसका भी आंसर देंगे हम, लेकिन पहले सेट-ज़ैप रूल को समझने की कोशिश करें। व्हाट इज सेट-ज़ैप रूल? दिस रूल स्टेट्स दैट इफ द गिवन अल्कीन कैन अंडर सॉरी फिर से गिवन अल्कीन बोला, इफ द गिवन alkyl halide is such that it can undergo elimination in two ways. It can undergo elimination in two ways. Then it will give the alkene which is more substituted. याद रखें, अगर हमारा alkyl halide इस टाइप का है कि वो एक से ज्यादा अल्कीन दे सकता है, तो याद रखें वो अल्कीन बनेगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। That will be formed in more quantity. क्यों? उसका रीजन भी हम देंगे। देखिए बच्चे, इसको देखें आप, जो पहले था, मैं कंपैरिजन ड्रा करवा देता हूँ, इसको देखें। इसमें जो अल्कीन बन रहा है वो एक ही पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक ही बीटा है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज इट हैज टू बीटा कार्बन एटम्स। दिस इज वन बीटा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज वन बीटा, दिस इज सेकंड बीटा। ये लिखा है यहाँ पे बीटा बीटा। So there are two probabilities. Elimination can occur from this side, elimination can occur from this side. जिस कार्बन से हैलोजन निकलना, उसके पास वाले से क्या निकलना बच्चे? हाइड्रोजन। We have two possibilities. अब आपके दिमाग में होता होगा ऐसा क्यों होता है, वही बता देता हूँ। उसका कारण है बच्चे, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। जो अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है बच्चे, वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे ब्यूट 2 इन को ले लेते हैं और ब्यूट 1 इन को भी ले लेते हैं, दोनों की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो क्यों ज्यादा बना? ब्यूट 2 इन, ये बच्चे आ गया ब्यूट 1 इन, ये आ गया ब्यूट 2 इन। अब देखिए बच्चे फर्क क्या है। आपने पढ़ा होगा हाइपर कंजुगेशन कांसेप्ट। वो क्या कहता है कि जब भी सी डबल बॉन्ड सी से सी एच बॉन्ड जुड़ा हो, ये इसके साथ हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, 11th में पढ़ा है आपने। Whenever a CH bond is attached to carbon-carbon double bond, it can conjugate with it, hyperconjugation. Sigma bond conjugating with pi bond, so it is called sigma pi conjugation. जैसे राइनोस में होती है n pi conjugation, वहां पे सिग्मा पाई। जितनी सिग्मा पाई कंजुगेशन ज्यादा होगी, जितनी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, आपका जो कंपाउंड है उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें कौन से CH बॉन्ड है, कितने CH बॉन्ड है इस वाले में जो हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं बच्चे? 3 इस साइड है, 3 इस साइड। कौन से होते हैं वो मैंने बताया, CH बॉन्ड अटैच टू डबल बॉन्ड बाई सिंगल बॉन्ड। ये है ना, ये देखें 1 2 3, 3 इधर है, 6। तो 6 CH बॉन्ड्स, इनको अल्फा फंक्शनल के साथ जो पहला कार्बन है अल्फा है, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। 3 इधर है, 3 इधर है, जो हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। सो इट हैज 6 अल्फा CH बॉन्ड व्हिच कैन डू हाइपर कंजुगेशन। अब इसको देखते हैं। इसमें ये बच्चे आपका क्या है, अल्कीन। ये इसके साथ आपने देखना कितने CH बॉन्ड हैं जो हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। सिर्फ 2 हैं बच्चे, ओनली 2। एक ये बच्चे देखें, दिस इज वन, ये ऐसे, दिस इज सेकंड। सो इट हैज ओनली 2। मैंने कहा मोर द हाइपर कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कीन है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने की क्या होती है, ज्यादा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन विद अदर अल्कली मेटल्स। बच्चे कल आपने पढ़ा था रिएक्शन विद सोडियम, क्या होगा आपको? रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स लाइक लिथियम, जिंक, मरकरी, सोडियम, लेड, एलाई एटसेट्रा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, इनको छोड़ के बोल रहा हूं। अदर मतलब एक्सेप्ट सोडियम एंड मैग्नीशियम। इन केस ऑफ मैग्नीशियम वी गेट ग्रिग्नॉड रिएजेंट, अगर आपको याद है। इन केस ऑफ सोडियम हमें क्या मिला बच्चे, अगर आपको याद है तो? सोडियम के केस में ऐसे रिएक्शन हुआ, आपको याद होगा, वी गेट अल्केन RR। सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसने हैलोजन को प्रेफर किया, सोडियम एक ही बॉन्ड बना सकता है। इन दो रिएक्शन को छोड़ के वो बाकी एक्टिव मेटल की बात कर रहा है, जिसमें एक वो कह रहा है लिथियम।
लेट अस हैव रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम आपको पता है अल्कली मेटल में पहले नंबर पे आता है, इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट हैज स्मॉल साइज। बच्चे ये क्या करता, ये सोडियम की तरह बिहेव नहीं करता, ये लिथियम से भी बॉन्ड बना लेता, दोनों में से किसी को नाराज नहीं करता, दोनों से बॉन्ड बनाता पर अलग अलग, क्योंकि बॉन्ड एक ही बना सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम एंड lithium, though they belong to the same family. Sodium is highly electropositive, it prefer to form only ionic bond, whereas lithium is less electropositive, it prefer to form ionic predominantly। बच्चे आयनिक मतलब कोवलेंट फैक्टर भी होगा, पर इसमें लिथियम हैलाइड वाले को लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका नेचर दोनों साइड है, दोनों साइड आयनिक कोवलेंट, तो इसने दोनों से बॉन्ड बना लिया, किसी को नाराज नहीं किया। ये जो कंपाउंड बना इट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक मतलब मेटल भी है इसमें और ऑर्गेनिक पार्ट भी है। इसी तरह से एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, रिएक्शन विद टेट्राइथाइल लेड, सॉरी रिएक्शन विद सोडियम लेड एलाई, बनता इसमें टेट्राइथाइल लेड, सोडियम लेड एलाई, सोडियम लेड एलाई। इसमें क्या बनता है बच्चे, टेट्राइथाइल लेड C2H5 4 टाइम क्या बच्चे Pb प्लस इथाइल ले लिया बच्चे लेड ने, तो ब्रोमीन कौन लेगा, अंडरस्टूड है सोडियम, सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सोडियम लेड एलाई। बैलेंस करेंगे अगर इथाइल 4 टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बच्चे 4 से, तो अंडरस्टूड है हमें सोडियम भी 4 चाहिए, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 सोडियम हो गए और लेड भी तो 4 हो गए, इसमें तो एक ही लेड आया, तो +3, इस तरीके से हम लिख सकते। इसमें भी क्या बना बच्चे देखें, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। लेड भी एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, आपको पता होना चाहिए, इट बिलोंग टू कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, पी ब्लॉक में पड़ता जाके इस तरीके से। तो ये जो टेट्राइथाइल लेड है, इसको बच्चे याद रखें, यूज करते थे अर्लियर, आजकल नहीं करते, बाद में पता चला कि इससे कैंसर हो सकता है। एंटी नॉक कंपाउंड इन पेट्रोल, नॉकिंग को कम करने के लिए। आपने कभी देखा है अगर मोटरसाइकिल में साइलेंसर नहीं लगा हो, तो जब मोटरसाइकिल चलता है तो कितनी आवाज आती है, आवाज को कम करने के लिए साइलेंसर लगाया है ना। टेट्राइथाइल लेड को भी इसलिए डाला जाता है कि थोड़ी आवाज कम हो, एंटी नॉक कंपाउंड है ये, कौन, टेट्राइथाइल लेड। बाद में पता चला कि इट कॉजेज कैंसर, एंड नाउ अब इसका यूज प्रॉबिट किया गया है। was tetraethyl lead and it is organometallic compound। sodium lead alloy से ट्रीट करना बच्चे, lead preferred ethyl and sodium preferred bromine। अब टेट्रा क्यों बना, आपको पता है कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, इसलिए टेट्राइथाइल लेड बना। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, इफ यू नो द कंसेप्ट, अगर आपको रिडक्शन का कंसेप्ट पता है तो आपको याद होना चाहिए, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चे, एक्स। एडिशन तो इसमें पॉसिबल नहीं, अगर एडिशन करेंगे है ना, तो कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के बच्चे, 5, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अंडरस्टूड है, इसमें जो रिडक्शन का मीनिंग है वो है रिमूवल ऑफ हैलोजन। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करेंगे, वी विल गेट व्हाट, अल्केन। हमें क्या मिलेगा बच्चे, अल्केन, दैट इज विल गेट आर। रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन हो गई है, और HI and red phosphorus, but this reduction is exclusively for alkyl iodide। बाकी वाली रिडक्शन है उसमें कोई भी अल्काइल आयोडाइड चलेगा, इट इज ओनली फॉर अल्काइल आयोडाइड। इसमें HI रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, वी गेट अल्केन प्लस आयोडीन। RX प्लस H, ये कहां से आया बच्चे, जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, जिंक कॉपर कपल प्लस इथाइल अल्कोहल, है ना। तो यहाँ भी इनका रिएक्शन होगा, यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। इसी तरह से बच्चे जिंक प्लस HCl, इसी की एग्जांपल दी है यहाँ, जैसे यहाँ लिखा है RX, यहाँ लिखा है मिथाइल ब्रोमाइड। फॉर एग्जांपल एक मैं दिखाई दूंगा आपको, जैसे हमने ले लिया बच्चे मिथाइल ब्रोमाइड CI3Br, है ना, प्लस जिंक एंड HCl यूज किया, सपोज आपने जिंक एंड HCl जैसे यहाँ यूज किया, तो जिंक क्लोराइड प्लस क्या हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन 2H, बॉन्ड तोड़ा, इसकी रिडक्शन कर दी, क्या बन गया, CH4 प्लस HBr।
अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे CH3Br, उसमें होगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्रोडक्ट वही बननी CH4 प्लस क्या बच्चे HBr। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग आपको यहाँ समझाना चाहूंगा, आपको एग्जाम में आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन, और दूसरा आता है हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मीथेन। कैसे करोगे बच्चे, दोनों में अल्केन होना, इसको करेंगे हम रिडक्शन से, अभी किया जो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इसको करेंगे बाय ट्रीटिंग विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम वाला रिएक्शन यूज करेंगे यहाँ, आपको याद होगा क्या होता, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम प्लस मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, सोडियम ब्रोमाइड यहां से निकल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बच्चे CH3। ये चीज देखने वाली होती है, आपके दिमाग में एकदम से कंसेप्ट आना चाहिए कि मुझे डबल करना है कार्बन का नंबर, तो अंडरस्टूड है मुझे किससे ट्रीट करना है, सोडियम से। इस तरीके से हमने रिएक्शन कल पढ़ा, एक ही चीज से आप डिफरेंट अल्केन्स बना रहे हैं, मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन। अगर इथेन बनाना है तो यू हैव टू ट्रीट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेक्स्ट वी हैव आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन बच्चे कहां पे होगी, यहाँ आइसोमर बन सकता हो, और आइसोमर बच्चे बनेगा प्रोपाइल में, इथाइल में तो बन ही नहीं सकता। इथाइल जैसे क्लोराइड है, अब इस क्लोरीन को इधर लगाएंगे तब भी तो ये सेम ही कंपाउंड रहा, देखो इसको कोई फर्क है क्या, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, बट इसमें और इसमें कोई फर्क है, देखो जरा, CH3 CH Cl CH3, इज द डिफरेंस, यस देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है बच्चे, यहाँ क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, यहाँ क्लोरीन सेकंड से, इसमें CH है, इसमें CH नहीं है, पर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम CH3H7Cl। ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो 1 chloropropane can be converted to 2 chloropropane, that is it can be converted into its isomer by heating it with aluminium chloride in presence of क्या बच्चे, aluminium chloride at a temperature of 573 Kelvin। aluminium chloride is a halogen carrier, Lewis acid है ये, आप जानते हैं इसको, it is a Lewis acid, it is electronically deficient, बोरान फैमिली का है ये, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, एल्यूमिनियम क्लोराइड यहां से Cl को विद इलेक्ट्रॉन निकालेगा थोड़ी देर के लिए, जब मैंने हीट किया क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, AlCl4 नेगेटिव, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये ज्यादा देर तो टिक नहीं सकता, इट इज अनस्टेबल, कार्बोकेटाइन कैरिंग फॉर्मल चार्ज, बट आपको ये भी पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, जानते हैं आप, हमने पढ़ा कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन बट प्राइमरी। इस ये क्या करता है जो कार्बोकेटाइन प्राइमरी, ये रीअरेंजमेंट करता, पास वाले कार्बन से H को अपने ऊपर शिफ्ट करवा लेता और बना लेता सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, अपने आप को मोर स्टेबल करता, तो उसके बाद फिर इसी AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करके इससे Cl ले लेता और बना लेता क्या, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट CH3CHClCH, दैट इज आइसोमर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। मतलब ये हुआ कि क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को प्राइमरी कार्बन से उठा के सेकेंडरी कार्बन पे किसने पहुंचाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड ने, इसलिए इसको हैलोजन कैरियर भी कहते हैं, हैलोजन को कैरी किया इसने, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हैलोजन कैरियर। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी होता है, लेकिन याद रखना बच्चे, आइसोमराइजेशन वही हो जहां आइसोमर बन सकता हो, जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें बन सकता है, 1 से उठ के 2 पे चला जाएगा, जैसे ये गया, दिस इज हाउ इट हैपेंड, ठीक है ना, ये है बच्चे। नेक्स्ट वी हैव, this was all about what alkyl halide, next topic that is haloarenes or aryl halides, this we will study in the next video। यहाँ पे हम, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है हेलोअरीन्स अराइल हाइड्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बेहतर है स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।